हमारे देश की या यूँ कह लीजिए हमारे शहर की या यूँ कह लीजिए हमारे माहौल की एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम फेस करते हैं वो ये है कि जब इतने इमेंस एक्सपीरियंस के साथ लोग यहाँ बैठे हैं, अलग अलग फील्ड में अचीवर्स हैं, लोग उनको सुनने के लिए नहीं बैठते। ज़रूर बैठना चाहिए। आप कैसे सीखते हो किसी से? जो आप किसी को सुनते हो या जिसने आप जो करना चाहते हो वो करा हुआ है पहले, उसको सुनते हो। It is a must attend panel discussion for everybody who are into MSMEs. They are the people who know MSME from scratch. ये इस word को own करते हैं. So it is our privilege and honor today that we have 4 panelists today with us at MSME Conclave and Business Awards with us. So we have our first panelist, Mr. Rajinder Singh sir. अब राजेंद्र सिंह सर क्या है कि ही इज़ इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग विद लार्ज एंड मीडियम कॉर्पोरेट्स। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट है एंड ही टॉक्स अबाउट प्रोसेसेस। एक समय के बाद आके आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको लोग चाहिए। यू नीड people to work for you, you need more hands for you, you need more capital for your business. Importantly, you need process and systems. How many of you agree? Give me a raise of hand. Process and system is required because a lot of people sitting over here, they handle teams in their businesses. And for that, you need operational excellence. So we have Rajendra Singh sir to talk about operational excellence in MSME today. Sir, my question to you is how the MSMEs in 21st century can maintain operational excellence, especially when they are thinking of expanding their team, when they are thinking of following certain processes and systems, and what are those methods, what are those strategies which you have suggested MSMEs and corporates जिससे लोगों को फायदा हुआ है? Thank you very much. It's a very interesting and important topic because operational excellence still is no longer just a buzzword for big corporates. I think one of the missing link for between. Hello. Hello. So I was saying that operational excellence is not just a buzzword for big corporations. It's a very essential and a missing link which I see always with entrepreneurs which are trying not only to survive but scale up. When you scale up, you need systems, you need tools to be established which make you more agile, more trustworthy, and more sort of publish your growth. Or it's like a silent engine which will propel your growth. Because as you grow, at the start you have a very good vision, you can do everything yourself, and you can maintain a lot of processes. But as you grow, you need more sort of concrete, reliable, repeatable systems in place, which will drive excellence and execution at the ground. Because once you are out of this initial startup phase, you need, again, as Sheriji said, a team of people. You need and to be able to sort of create that value for the client on a consistent basis, you need all these system and processes. So that's where I think very, very important for any entrepreneur to, as he grows in his journey, to start building those systems and tools which can be relied on. And that is the real essence of this there. But then many other things have been also said. Mr. Agarwal also pointed out about how do we start becoming an entrepreneur and in growth? How do we start making sure that every minute we spend, every pie or every rupee we spend, or every bit of resource we spend goes in addition, value addition for the client? Value addition for the client. So becoming lean, implementing tools like lean manufacturing, lean management, thinking about customer-centric focus, always understanding the value. All of this is sort of a systemic approach to managing the processes, which will really propel your growth going forward and really
eliminate some of the bottlenecks which we see with entrepreneurs as they start to grow. They have all that, they become good financial, they have good systems, but while operating, they have a lot of lacuna. Their teams are not in place. Their motivation is not there. Their processes of recruitment, processes of reward, recognition, growth, all of them are seriously missing in these companies, which I think is very, very important and a backbone of growth for any entrepreneur. Thank you, sir. Thank you so much for your enlightening answer. And as we talk about system and processes in the business, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत बिल्कुल स्क्रैच से करी, और घर में जो आप खाना खाते हैं उसके लिए जो चम्मच और बर्तन चाहिए होते हैं, ये उस बिज़नेस में है। तो मैं बात कर रहा हूँ देश के जाने माने एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर डॉक्टर पवन कंसल जी की। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, और वो जगदम्बा कटलरी लिमिटेड के नाम से एक फर्म चलाते हैं जिसमें वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी उन्होंने किया हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सर मैंने फराह खान जी का भी वो एक टेलीविज़न शो देखा, वहाँ पे श्री एंड साई जो इनका ब्रांड नेम है, उसके गिफ्ट देख के मैं इतना इम्प्रेस फील करा मैंने कि ये ब्रांड कहाँ से चला था और आज कहाँ बॉलीवुड तक पहुँच गया। एक अपने ब्रांड को बॉलीवुड तक पहुंचा देना और उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना जहां पर आप एक इमेजिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं अपने एक बिजनेस की। तो सर ये सब कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे कौन लोग हैं और इसके पीछे क्या ऐसे कारण हैं जो आप इस बिजनेस में आए और इतना एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं आप? तो सैरी जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हमने पहले गाने सुने खूब सारे, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि भी मन का फूल खिला। हम लोग काम में लगे रहते हैं ना, हम हैसल्स में, सब अपने अपने घर में और में, तो अच्छा लगा। फिर अग्रवाल साहब को सुना, तो कभी एक मौका आया था अग्रवाल साहब से हमारा कोई संबंध जुड़ने वाला था, पर आज दूसरा संबंध जुड़ा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसे ही आपको सुना। मेरा जो व्यापार है वो स्टेनलेस स्टील के, जैसे किचन की आइटम हुई, डाइनिंग की आइटम हुई, गेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए हुआ, उसका व्यापार है। मैं बहुत कुछ तो क्या बता पाऊँगा, यहाँ की जो ऑडियंस है वो मुझे लगता है कि भी मेरे जैसी एक्सपीरियंस या मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस दी है। कुछ यंगस्टर हैं, पर आप सबके साथ यंगस्टर हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तभी तो आप यहाँ हैं, नहीं तो खाट में होते, चारपाई में होते, आराम कर रहे होते कहीं। जो एक हमारे अंदर आग अगर है तो मुझे लगता है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अभी बाकी है। तो सबसे पहला काम जो कि मुझे सबसे लास्ट में बोलना चाहिए पर पहले बोलता हूँ, उनका साथ देना पड़ेगा, उनका साथ देना चाहिए और उनको ही आगे करना है। ज़माना काफ़ी बदल गया है। मेरी जो ट्रेड की जर्नी है वो करीब 43 इयर्स की है। 84 में मैं इस काम में आया था, 82 से 84 में टेक्सटाइल में रहा, फिर स्टेनलेस स्टील में आया था। तो स्टेनलेस स्टील के काम में जब मैं आया था, हम स्क्रैप से चम्मच बनाते थे, केवल एक साइज़ की चम्मच बनाते थे, बेबी स्पून। उसी से हम लोग खाना खाते हैं, उसी से चाय में मिला लेते हैं, उसी से डिनर करते हैं। ऐसा ही था भारत, चम्मच थी नहीं। हमारे एक भाई साहब हैं, तो उनको ससुराल गए तो उन्होंने अपनी सास से कहा मैं तो चम्मच से खाना खाऊंगा। ये बात होगी 50-60 साल पुरानी। तो चम्मच थी नहीं तो उसकी सास ने कड़छी दे दी तो वो कड़छी से खाना खाया और आके अपने घर बताते, भाई मैं तो जो है इतनी बड़ी चम्मच से खाना खा के आया हूँ सरकार वहाँ ससुराल में। पर आज ये नया भारत है, हमने दुनिया देख ली है और इसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। टेक्नोलॉजी इन हो चुकी है, प्रोसेसेस डिफाइंड है, क्वालिटी डिफाइंड है,
उसके बाद इनोवेशंस हैं, वो टेक्नोलॉजी की कहो या आप कहो कि भाई कल्चर डेवलपमेंट की कहो, या आप कहो एसएमई से यूनिकॉर्न बनने की यात्रा कहो, जिसके अंदर बहुत सारे इनपुट्स आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ लेते हैं जो कि हम अब सीख रहे हैं। मैं एक संस्था है ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके साथ जुड़ा हूँ। गौरव जी। एक हाँ, हम लोग वहाँ गए हुए थे देहरादून, तो एक एम्बेसडर थे, तो उनके साथ बैठे तो उन्होंने मुझे एक पॉलिसी बताई, ओलिगोपोली और मोनोपोली। हम अब सीख रहे हैं, बच्चे वहाँ से सीख के आए हुए हैं। अब ये सब चीज़ें जो दुनिया में हो चुकी हैं, हम कहाँ छोड़ गए, हम मटेरियलिज्म में नहीं आए। तो ये कमजोरी नहीं है, यही हमारी ताकत है भारत की, कि हम लोग बहुत अच्छे। सबसे बड़ी बात है कर्म में विश्वास करते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा, भगवान में विश्वास करते हैं। तीसरा, समाज के लिए, देश के लिए सोचते हैं। मैंने अपने काम में जिस दिन से देश को जोड़ा, उस दिन से मेरा काम 1000 गुना बड़ा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम 7 फैक्ट्री चलाते हैं, करीब 6000 आदमी काम करता है, 28 से 30,000 प्रोडक्ट हैं, हर रोज़ 4-5 नए प्रोडक्ट बनते हैं। R&D पे काम करते हैं, नई से नई चीज़ें, मटेरियल साइंस पे काम करते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील होते हुए उसमें और स्टेनलेस स्टील कैसे हो, और बढ़िया कैसे हो, और बढ़िया कैसे हो, ये फैशन में कैसे आए, ट्रेंड में कैसे आए। हमारे बहुत सारे लोग अनहाइजेनिक बर्तनों में खाना खा रहे हैं। मान लो कोई यूरिया से बने हुए बर्तन में खाना खा रहा है और उसको वो बोलते हैं मेलामाइन, ठीक है। फिर जो है उसके ऊपर कोई कोटिंग्स हो रखी हैं या प्लास्टिक है, आखिरकार नुकसान ही दे रहा है। हमें कम से कम सेफ बर्तनों में खाना खाना है। तो सबसे सेफेस्ट स्टेनलेस स्टील है, जिसमें कि लीचिंग नहीं होती, आपका खाना से उसमें मिक्स होकर कोई जहर बनता नहीं है, तो सबसे सेफ है। पर इसके साथ साथ अब हमारे ट्रेड के अंदर में वो पुरानी चीज़ें भी वापस से आ रही हैं, कि जैसे देखेंगे कि भाई कॉपर के अंदर पानी पीते हैं, आजकल खूब सारे लोग कॉपर का यूज़ करने लग गए और लोगों को मालूम है। फिर एक लोहे की कढ़ाई भी घर पे होनी चाहिए कि करेला बनाना है या भिंडी बनानी है। फिर उसके बाद जो है कांसे का बर्तन हो, कभी खिचड़ी दलिया खाना है। अब तो हेल्थ की बात होने लगी तो लोग मिलेट्स खा रहे हैं। फिर चांदी का बर्तन होना चाहिए। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये महंगे बर्तनों को भी यूज़ कर रहे हैं और ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स को। माइक्रो टेक्सचर है, कोटिंग्स आउटर लेयर पे एस्थेटिक्स के लिए बहुत सुंदर सुंदर। और अभी नया बदलाव हमारे ट्रेड में जो मैंने महसूस किया कुछ सालों से, जैसे कुकवेयर है, तो कुकवेयर में हमारे यहाँ पे केवल एक भिगोना होता था, एक कोई डेगची सी होती थी, पर आज दुनिया भर के कुकवेयर्स आ गए हैं। फ्राइंग पैन अलग है, स्ट्रू पैन अलग है, कुकिंग पॉट अलग है, दूध के लिए अलग है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी छोटे छोटे व्यापार में लोग हैं, हमारे लिए करीब करीब 60 करोड़ नया ग्राहक तैयार हो रहा है, यंगस्टर। बहुत अच्छे। और वो यंगस्टर जो है नए घर बसाएंगे। जमाना कुछ ऐसा आ गया कि वो नए घर बसाएंगे, तो अपने ग्राहक है। और दूसरी बात, थोड़ा सा माहौल भी ऐसा आ गया है कि भाई वो लड़के को भी काम करना पड़ेगा घर का तो कुकिंग करेगा। तो हमारे लिए जो है वो जैसे मान लो पहले तो ये आधे ही होते भी लेडीज ही खाना बनाएंगी, बिल्कुल, तो वो पैसे भी कम खर्चती हैं थोड़ा सा तो 30 करोड़ लड़के भी खाना बनाएंगे तो 60 करोड़ ग्राहक हो गए। तो खूब सारा व्यापार हिंदुस्तान में आने वाला है। हिंदुस्तान की जो पावर है वो यहाँ की सोच है और यहाँ की पब्लिक है। तो ये क्वांटम और साथ में पैशन और नई जनरेशन आपको ज़रूर आगे लेके जाएगी और स्वर्णिम भविष्य है। मुझे लगता है जिस हिसाब से देश में बदलाव है, दिल्ली में ही देखेंगे जगह जगह पे काम हो रहा है, कहीं मेट्रो का या कुछ,
तो मुझे लगता है हम जीते जी इसको लंदन देख के ही जाएंगे। थैंक यू। क्या बात है सर। ये देखिए, आप सब लोग प्लेट्स में चम्मच के साथ खाना खाते हैं, पर आपने सोचा है कभी कि एक आदमी अपने ऑफिस में बैठे हुए कहाँ तक सोच रहा है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की नींव रख रहा है, और वो इस हद तक सोच रहा है कि वो सिर्फ फीमेल को किचन में इंक्लूड नहीं कर रहा, वो जानता है कि बीइंग अ मेल भी बहुत अच्छे कुक होते हैं, और वो मेल को भी उस बिजनेस का पार्ट बना रहा है। यही इनोवेशन है। यही हमारे इंडिया में जो इनोवेशन आ रही है वो यहीं से आ रही है। पवन कंसल सर जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो एक फील्ड में डेप्थ में काम कर रहे हैं, आज इनको शायद ही कोई ऐसा पर्सन है जो इस ब्रांड को नहीं जानता। पूरे इंडिया में श्री एंड साई का नाम है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट सर आपने बोला कि मैंने ये कहीं पढ़ा भी था, अगर आपको व्यापार शुरू करना है, आप ऐसे कितने लोग कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई स्टार्टअप, एक हाथ तो खड़ा हुआ है, दूसरा मेरा है, ठीक है, तो 2 लोग हैं, तीसरा भी वहाँ पे भी है, तरुणा जी का भी हाथ खड़ा हो गया। अगर आप नया व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इस सवाल को अपने बिजनेस में ज़रूर डालिएगा कि आप भारत के लिए क्या कर सकते हैं, इसका जरूर डालिएगा। और जब हम बात करते हैं प्लेट्स की, चम्मच की, तो खाना तो चाहिए, स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट मिठाई, स्वादिष्ट नमकीन, सेवरीज, कुकीज, तो बीकानेर वाले से अच्छा कोई ब्रांड है नहीं। और यही इंट्रोडक्शन है नवरत्न अग्रवाल साहब की। फैमिली पर्सन है, जेम ऑफ अ पर्सन है। मैं इनके घर भी गया हूँ, मैं नवरत्न जी के साथ आधा घंटा फ़ोन पे बात करी है मैंने, मेरा सौभाग्य है। और ये जितना आपको दिखने में एक बिजनेस ओनर की तरह दिख रहे हैं, ये उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एक्चुअली में उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। और हमारी चर्चा एक बार इस विषय पे भी हुई थी कि बिजनेस में स्पिरिचुअलिटी का क्या एंगल है। सर आज मेरा यही सवाल है आपसे कि बिजनेस के अंदर स्पिरिचुअलिटी का क्या एंगल है, और आप सब अपने अपने दिवाली के बॉक्स बीकानेर वाले से ज़रूर ले लेना प्लीज़। थैंक यू सैरी जी। पवन जी ने भी इतनी अच्छी बातें कही कि अब लेडीज़ और जेंट्स दोनों बनाने वाली बातें कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो हम कोशिश करेंगे कि लेडीज़ को घर पे बनाना ही ना पड़े किसी प्रकार से। जेंट्स की तो बहुत दूर की बात है। वो रीज़न है कि हम इतना रीजनेबल क्वालिटी इतनी बढ़िया बना के दें कि कस्टमर्स अपनी अंगुलियां चाटे कि यार मैं नहीं, वो बेस्ट है। तो वैसे इनकी प्लेटों की और की चीज़ों की दिक्कत नहीं है, वो हम हमारे पास अपनी प्रत्येक जगह यूटिलाइज करेंगे इसी। थैंक यू। ये मजाक की बात थी। एक जो स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस के लिंक की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी होती क्या है? जो मैंने अनुभव किया, परमात्मा ने अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाया हुआ। अगर हम उस परमात्मा को अपने रोम रोम में देखने लगते हैं, उसको अनुभव करने लगते हैं, हम उसमें जीने लगते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन होने लगता है। एक बच्चा क्या होता है? प्रत्येक चीज के लिए जिज्ञासु होता है, कर्मठ होता है। मतलब अमीर से अमीर बच्चा भी और गरीब से गरीब बच्चा भी वही इंजॉयमेंट कर रहा है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है किसी प्रकार का। जरूरत है कि आज की तारीख में क्या है, अब गरीब से गरीब के लिए भी पूरी इंटरनेट फैसिलिटीज, एजुकेशन, सब कुछ अवेलेबल है एआई की फैसिलिटीज के द्वारा। मतलब कोई अमीर से अमीर को भी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके वो अमीर अपने आप को मेंटेन रख पाएगा। और गरीब से गरीब के पास वो सारी फैसिलिटीज हैं आज के तारीख में, अगर वो उठ के कुछ करना चाहता है। अगर आदमी कब कर पाता है? जब मन में, जहन में जिज्ञासा हो, कर्मठता हो। बच्चा क्या होता है, प्रत्येक बच्चे में जिज्ञासा होती है कुछ सीखने की, अपना आप करने की। वो अपना आप चलना चाहता है, अपना आप करना चाहता है, और 10 बार गिरने के बाद भी डरता नहीं है, और कोई भय और संकोच नहीं होता किसी प्रकार का। उसे मालूम है मेरे माँ बाप और मेरे साथ में सराउंडिंग है, तो उससे कोई भय और संकोच नहीं है। हम लोगों में क्या दिक्कत है? हमें भय है, संकोच है, बोलने का भय, काम करने का संकोच, दुनिया भर की और नेगेटिविटीज। हम आलस्य में कहीं जीवन जी रहे होते हैं। बच्चे में कोई आलस्य नहीं होता, किसी प्रकार का आलस्य नहीं होता। जब तक हमारे जीवन में क्या आलस्य है, और क्रम की जगह हम कहीं अपने आप को रीलों में, कहीं और चीज़ों में अपने आप को मनोबल बढ़ा लेते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। नहीं,
जब तक आप कर्म नहीं करते जा नहीं सकते। स्विमिंग आप किताबों से पढ़े जाओ, कितनी सीख लोगे? नहीं सीख पाओगे। साइकिल सीख लोगे? नहीं सीख पाओगे। आप थोड़ी देर के लिए साइकिल चलाओगे, सीख जाओगे 5 मिनट में, और कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली नहीं करते, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। अब ये सब चीज़ें क्या है? ये सब अध्यात्म के पार्ट हैं। जितनी बातें कर रहा हूँ, अध्यात्म कौन? अपने आप को सरल, ढीला, निढाल छोड़ दो, अपनी आंखों को ऐसे प्यार करो जैसे साक्षात परमात्मा। परमात्मा कौन? परम शक्ति, परम ज्ञान, परम विज्ञान, जो अद्भुत है, जिसने सारा क्रिएट किया है, वो आपकी रोम रोम में है। और आंखों के प्रति धन्यवाद। आंखें कितना अच्छा देखती है, नाक के प्रति, कान के प्रति, हार्ट के प्रति, प्रत्येक चीज और अंग प्रत्यंग के प्रति हमारा धन्यवाद का भाव। प्रत्येक पेड़ों के प्रति, पौधों के प्रति, पूरी ब्रह्मांड के, सूर्य के प्रति, हवाओं के प्रति, जब तक हम धन्यवाद से नहीं भर जाते, अपने आप प्रति भी धन्यवाद का भाव, क्योंकि हमारे शरीर के एक अंग प्रत्यंग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब आलसी तो मैं ही हूँ अंदर में, मैं ही अंदर काम नहीं करता हूँ। मैं ही अपनी नेगेटिविटी की जगह मैं उस पॉजिटिविटी के साथ आ जाऊँ, क्योंकि सारा ब्रह्मांड मुझे दे रहा है, मैं ब्रह्मांड को क्या दे रहा हूँ? मैं भी ब्रह्मांड का कहीं कॉम्प्लीमेंट्स हूँ, मेरी भी कहीं खुशबू हो, मेरा भी कहीं प्रेम हो। जितना मेरे अंदर प्रेम होगा तो मैं प्रेम बांटूंगा, ज्ञान होगा तो ज्ञान बांटूंगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो मैं कॉन्फिडेंस बांट पाऊंगा। जितना मैं कॉन्फिडेंस होगा उतना कॉन्फिडेंस बांट पाऊंगा, और जितना मैं अपने आप का मनोबल बढ़ा होगा, मैं अपने बिजनेसेस को बहुत अच्छे कर पाऊंगा। जब तक मैं आध्यात्मिक नहीं हूं और मैं कहूंगा बिजनेस बढ़िया कर लूंगा, नहीं। हमारे यहां तो कहते हैं ना, कस्टमर को मन और भाव से परमात्मा मानो। जब तक उस कस्टमर को परमात्मा नहीं मानोगे लिए तो परमात्मा भाव माना, तो फिर हमारे जो कर्म होते हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लेना है, बेस्ट रॉ मटेरियल बनाना, अच्छी तरह से बनाना है, साफ सुथरा हाइजीनिकली करना है, तो प्रत्येक चीज में हमारा सिस्टम आने लगती है। हमें अध्यात्म हमें अपने बिजनेस में कभी हतोत्साहित होने नहीं देता, जो है हमें सीखने के लिए मौका देता है। क्योंकि हर वक्त सफलताएं नहीं मिलती। आप 10 काम करते हो तो एक आध में सफलताएं मिलती है, एक आध में नेगेटिविटी, नुकसान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप नुकसान के टाइम में भी हारो नहीं, घबराओ नहीं किसी प्रकार से, तो सब अध्यात्म के द्वारा ही आता है। आपका हर वक्त प्रसन्नचित, आनंदित तभी रह पाते हो जब आपकी अध्यात्म में पूरे लीन होते हो। क्योंकि जीवन, बिजनेस एक बहुत छोटा पार्ट है, अध्यात्म एक जीवन हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है, कि हम कैसे नाचते गाते लर्न करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन में बदल डालें। जब तक हम हर क्षण को श्रेष्ठ नहीं बनाते, हम काम में भी श्रेष्ठ नहीं ला सकते। जो आज काम कर रहे हैं उसको और श्रेष्ठ, और बढ़िया सिस्टम्स, लोगों को बढ़िया ट्रेनिंग, प्रत्येक चीज में क्वालिटी 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 लाने की कोशिश करते हैं, सिस्टमेटिक वे से काम करने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म आज की तारीख में प्रत्येक बिजनेस के लिए, उसके खुद के जीवन जीने के लिए, उसके पारिवारिक जीवन जीने के लिए, मैं अगर घर में प्रसन्नचित हूँ, अध्यात्म हमें हर हालत में प्रसन्नचित रहने के लिए प्रेरित करता है, आनंदित रहने के लिए, सीखने के लिए, और एक आनंद से भरा हुआ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। कहीं किसी प्रकार से अध्यात्म एक बहुत बड़ी, एक अनंत आनंद की एक प्रकाष्ठा है। क्योंकि परमात्मा जब परमात्मा से कम नहीं बनाता तो हम परमात्मा है लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है। ध्यान जब हम करने लगते हैं अपने अध्यात्म पे, तो बिजनेस में भी ध्यान करने लगते हैं। मतलब ध्यान और काम करने के लिए प्रेरित करता है। मेडिटेशंस में हमें ऐसे लगता है जैसे परमात्मा ने हमें परमात्मा से कम नहीं बनाया, तो शक्तिशाली मैं अनुभव नहीं कर रहा। तो जब मेरी रोम रोम जैसे भूख लगती है तो सारा शरीर हमें डिमांड करता है भूख के लिए, प्यास के लगी प्यास के लिए, फिर हम जाते हैं उसको प्यास को बुझाते हैं, खाने के लिए पूर्ण करते हैं। ऐसे ही अंदर हमारी डिमांड होगी कुछ क्रिएट करने की, जैसे पवन जी कह रहे थे, तो हमारे अंदर से कहीं से हमें उसको प्रेरित करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करेगी कि करो ये काम, मतलब फोर्सेबली करेगी हमारे को। जब तक हमारे अंदर जहन में उसको कुछ सीखने की जिज्ञासाएं नहीं होगी, लर्न करने की जिज्ञासाएं नहीं होगी, कॉन्फिडेंट करने की नहीं, तो मतलब प्रत्येक चीज़ वो हमारे को बिजनेस में भी सपोर्ट करती है। फिर बिजनेस में भी हम टॉप की चीज़ लाने की, पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट चीज़ें कहाँ से ला सकते हैं, हम चना कहाँ बेस्ट बनता है, दालें कहाँ बेस्ट बनती है, बेसन कैसे बेस्ट बन सकता है, कौन सी आटे की रोटी, एक बारीक रोटी के आटे की होती है, मैदा होता है, मोटा आटा होता है, कैसे होता है, थाली खाली की कैसे बनेगी, बादाम और दूध, और कैसे हम इसमें लौंग, जायफल, जावित्री एक हम डालते हैं, हल्दी, और ये कैसे शरीर को सपोर्ट करते हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और श्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। तो
अध्यात्म और जो बिजनेस है इस पे घंटों घंटों चर्चाएं कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा अध्यात्म शरीर से भी लिंक्ड है, परिवार से भी लिंक्ड है, पूरे ब्रह्मांड से भी लिंक्ड है, और हमारे बिजनेस से नेचुरली की पार्ट है। उसको हमारे को एक प्रफुल्लित खुशबू लाने का काम हमारा अध्यात्म देता है। तो थैंक यू, ये आपने क्वेश्चन पूछा बहुत उसके लिए बेहतरीन धन्यवाद। सर। और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आपसे अच्छा कोई दे भी नहीं सकता था, जिस you. क्लैरिटी के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ और जिस थॉट प्रोसेस के साथ आपने ये आंसर दिया है सर। आई एम 100% श्योर बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिला है। कितने लोगों को सीखने को मिला है ऑनेस्टली बताइए। देखिए सर, और ये मुझे ये भी दर्शाता है कि हमारी पूरी ऑडियंस बहुत अच्छे से इस पैनल डिस्कशन को सुन रही है। हमारे बीच काफ़ी दिग्गज पर्सनैलिटीज़ भी आ चुकी हैं। डॉक्टर सुमित सुशीलन आए हैं डिवाइन एयर से, जसजीत सिंह चंडीगढ़ से आए हैं जो कि अपना फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत बड़ा कारोबार चंडीगढ़ में चलाते हैं। हमारे बीच अमोद अग्रवाल जी हैं जिनका बास्किन रॉबिन्स का फ्रेंचाइज है इंडिया में। तो पूजा धनकर जी बैठी हुई हैं यहाँ पे। असल में क्या है कि आप देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल हो, हमारे साथ सोनल गर्ग जी हैं, वर्ल्ड बनिया फोरम के को फाउंडर हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये आप देखिए कि ध्यान से कि कहीं ना आप इनका बैलेंस देखेंगे, और वो बैलेंस आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड मिलेगा ही मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अभी नवरत्न सर ने जो बातें बोली हैं, अगर वो बातें हम उसका 10-20% भी अप्लाई करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमें वो आदत लग जाएगी। वो कहते हैं कि हमें चस्का लग जाएगा सर, टेस्ट लग जाएगा हमें। और बीकानेर वाले को तो वैसे भी कोई आवश्यकता ही नहीं है ब्रांडिंग करने की। आजकल बच्चे बच्चे के नाम पर बीकानेर वाला ही चढ़ा होता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो बेकरी हो। अमेजिंग क्वालिटी। और सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, तो मैं समझता हूँ बीकानेर वाले ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं एक भारतीय ब्रांड होने के नाते। तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर कि इतनी शानदार तरीके से आपने इंडियन मार्केट को टैप करा है, और जो एक बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड बिजनेस था उसको आपने कंसोलिडेट करके लोगों के लिए एक उपहार की तरह, मैं कहूँगा गिफ्ट की तरह, आपने एक बिजनेस क्रिएट करा, और जो लोगों को बहुत लंबे समय तक बहुत कुछ देता रहेगा। दोस्तों, ग्रूमिंग की अगर हम बात करते हैं तो ग्रूमिंग में आप सोच रहे होंगे कि ज्वेलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीज़ें हमारी जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं आयरा कौर, इनके पास कुछ ऐसी कलेक्शन है स्पिरिचुअल ज्वेलरी की जिसमें ये लोगों के ऑरा के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, इमोशनल बैलेंस के हिसाब से, बिजनेस में कैसे ग्रोथ मिलेगी उसके हिसाब से ये आपको ज्वेलरी सजेस्ट करती हैं। और मैं आयरा को आज से नहीं, पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ इसी फील्ड में। आयरा ने अभी एक शोरूम भी लॉन्च करा है अपना जनकपुरी में। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप एक बार उस शोरूम को ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए क्या शानदार कलेक्शन वहाँ पे आयरा ने क्रिएट करी है। और आयरा भी कोई गॉडफादर लेके नहीं उतरी इस इंडस्ट्री में। आयरा ने पूरी मार्केट को समझा है। पहले 10 साल अपने इंडस्ट्री को देना अपने बिजनेस बेबी की तरह होता है, उसको संभालना, उसको नर्चर करना, उसको कल्टीवेट करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको बड़ा करना, ये आप आयरा से समझ सकते हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ जर्नी एंड शी इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर, शी इज़ अ मास्टर, शी इज़ अ ट्रेनर। मैं आयरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल ज्वेलरी इट गोज़ बियॉन्ड फैशन, तो व्हाट अबाउट द इमोशंस एंड एनर्जी जब कोई ज्वेलरी पहनता है तो, और हाउ डू यू इंक्लूड द पार्ट ऑफ बिजनेस, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल एसेंस इन ज्वेलरी? थैंक यू शरी। एंड मतलब शुरुआत करने से पहले सबके लिए आई विल से कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि हर कोई यहाँ पे कॉन्शियस एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि स्पिरिचुअल एसेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब फॉर मी माई जर्नी आई विल से कि स्टार्ट तो जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही है, बट द मेन जर्नी स्टार्टेड व्हेन लाइक 17 years बैक। एंड स्पिरिचुअलिटी जिस तरीके से मेरी लाइफ में आई, आई विल से देयर वोंट बी एनी बिजनेस अगर उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी एसेंस ना हो। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप जिस तरीके से इन्होंने बताया वो सारी बातें जब अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर देते हो ना, ब्यूटी तो नेचुरली आ जाती है। बहुत सुंदर। और जब वो ब्यूटी नेचुरली आए ना, बिजनेस तो वैसे ही हो जाता है। ये तो बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं आपके।
अगर आप स्पिरिचुअल एसेंस में अपने काम करने लग जाओ. सो टॉकिंग अबाउट द जर्नी स्पेसिफिकली, कोविड में खासकर इतने हीलिंग के लिए केसेस आ रहे थे कि लोगों को हीलिंग चाहिए. एक दिन में इस तरीके से हो रहा था कि मैं 4 डेथ भी सुन रही हूँ अपने पेशेंट के, और 4 से 8 पेशेंट नए भी आ रहे हैं. सो इट वॉज़ अ वेरी ड्रेनिंग टाइम फॉर मी कि अब क्या किया जाए, कि ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग टाइम हो गया कि हीलिंग भी करनी है और मैं भी ड्रेन हो रही हूँ. तब एक आइडिया आया कि जो पुराने टाइम पे जो हमारे ऋषि मुनि वगैरह थे, उन्होंने यंत्र बनाए थे जो अपने काम करते थे. तो हमने उसी चीज़ को री इन्वेंट किया एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी की तरह. जो यंत्र एक तरीके से हमने पहले ही वो एनर्जी के पैकेट्स बना दिए. तो जब बंदा कोई आता है जिसको कोई प्रॉब्लम है, बस उसके साथ जो सूटेबल एनर्जी पैकेट है, जो ज्वेलरी है, वो प्रिस्क्राइब कर दी. एंड जैसे वो प्रिस्क्राइब करी, वो यंत्र एक तो आपके साथ 24/7 रहता है, तो वो आपकी बॉडी को, आपकी एनर्जी को हील करता रहता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ओवरकम करती रहती है. एंड विद दिस हमने मतलब स्टार्ट किया था 10 प्रोडक्ट्स के साथ, एंड नाउ वी आर लाइक अराउंड 270 SKUs. वाओ, फैंटास्टिक. एंड वी आर लाइक सिर्फ इंडियंस नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगी फॉरेन्स में लोग इतना अडेप्ट कर रहे हैं इसको दैट वी हैव अ ह्यूज मार्केट. मतलब अगर मैं 15 साल की बात पहले बोलूँ कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में नए नए आए थे, चीज़ों को नया सीख रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, तब आई थिंक देयर वेरी फ्यू पीपल. राइट नाउ द स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट साइंस मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली. सो उसी हिसाब से जो स्पिरिचुअल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो भी मार्केट में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. इट्स लाइक अ सपोर्ट फॉर यू, कि मतलब वो कहते हैं ना कि हमें बहुत अच्छा खाना चाहिए, वो ना खाली पेट भजन नहीं होता नहीं होता ना. तो उसी तरीके से अगर आपके साथ सपोर्टिंग एलिमेंट है, मतलब लाइक इस रूम में AC नहीं चल रहा तो मुश्किल होगी, थोड़ी सी होगी ना, लेकिन AC चल रहा है तो कंफर्ट हो जाएगा. एक तरह से सपोर्टिव एलिमेंट है. उसी तरीके से ज्वेलरी हम रोज पहनते हैं, हम पे इफ़ेक्ट करती है. हम जो भी पहनते हैं, हम जो कपड़ा भी पहनते हैं ना, वो कहते हैं ना लिनन का कपड़ा पहनना चाहिए. लिनन के कपड़े में ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसीज होती हैं. कॉपर के बर्तन में खाना खाना चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आप क्या पहन रहे हो, आपने मेटल कौन सा अपने ऊपर लगाया हुआ है, आपका फ्रेम कौन सा मेटल का है, चश्मे का फ्रेम कौन से मेटल का है, आपके घड़ी कौन से मेटल की है, सब इफेक्ट करता है. इज इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि अगर आप जैसे पहले ज़माने में क्वींस वगैरह, राजा महाराजा मुकुट पहनते थे सर पे, आपको पता है क्यों पहनते थे? स्पेशली गोल्ड का, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब आप वो गोल्ड का ऊपर पहनते हो, वो सर्कल बनाता है पूरा, एंड आपका क्राउन चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है. तो उससे आपका एनर्जी सिस्टम बॉडी का बेटर रहता है. अगर हमारी बॉडी में एनर्जी सिस्टम बेटर रहे ना, आपके सारे काम यूँ ही हो जाते हैं. आपको सोचना ही नहीं पड़ता. आपने सोचा कि अगर आपको ये बंदा चाहिए इस काम के लिए, आप देखना 2 दिन के अंदर आपके ऑफिस में आया होगा. ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में, मेडिटेशन में इतनी ताकत है कि जब आप अपने आप को जानने लग गए, तब आप जानोगे कि परमात्मा क्या है. अगर आपने अपने आप को ही नहीं जाना तो आप नहीं जान पाओगे कि परमात्मा क्या है, क्योंकि वो तो और भी बहुत परम्पार है. सो इस पूरी जर्नी में जो मुझे समझ आया कि हम अपने हर एक बिजनेस में, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी डाल सकते हैं, उसमें उस एसेंस को डाल सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इन्होंने कटलरीज की बात करी. मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी कि मुझे ना ब्रास की कटलरी बनानी है विच हैज़ दी सेक्रेड ज्योमेट्री सिंबल्स, और ताकि वो जो प्लेट हो ना जिसमें हम खा रहे हैं वो भी एकदम जागृत पेट हो, और जिसमें जब आप खाना डालोगे तो वो और जागृत हो जाएगा. तो जब आप वो मील खाओगे ना, आपको ना इतनी तृप्ति का एहसास होगा. यू विल फील कंप्लीट, यू विल फील दैट यू विल हैव Amazing. दैट पावर एंड एनर्जी.
सो एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इज दैट एनर्जी जो हमें दिखती नहीं बट वो हर वक्त है, बिना उसके हम जी नहीं सकते, बिना उसके हम रह नहीं सकते। जब हम भूखे होते तो भी क्या होता है, एनर्जी से यूटिलाइज कर रहे हैं हम। हमारे जो संत जो गुरु होते हैं कितने कितने महीने खाली पेट रहते हैं। मतलब आई इवन नो पीपल जिन्होंने कई सालों से कुछ नहीं खाया है, पर वो कैसे जीवित हैं, एनर्जी पे जीवित हैं। सो अगर आपको अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना आ गया एंड सपोर्टिव एलिमेंट्स, अगर हम वो सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपका अपना सेल्फ लव लाइफस्टाइल बनाए, जो आपके लिए बनाए, जो आपको सूट करता है, जो ज्वेलरी आपको सूट करती है, जो कपड़े आपको सूट करते हैं, अगर हम उन चीज़ों से खाने लगे, उन चीज़ों को अपने साथ लाइफ में इस्तेमाल करने लगे, हमारी लाइफ तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। थैंक यू बहुत सो सुंदर। मच एवरीवन। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, इस पैनल डिस्कशन का एक बहुत ही की ऑब्जेक्टिव था जो आयरा ने बहुत अच्छे से कंक्लूड भी करा कि नोइंग थाई सेल्फ इज द की टू ए सक्सेस ऑफ बिजनेस, एंड दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू टुडे आफ्टर लिसनिंग टू सच एमिनेंट पैनल डिस्कशन, दैट इफ यू स्टार्ट नोइंग थाई सेल्फ, अगर आप अपने आप को समझने की क्रिया या प्रक्रिया को शुरुआत दे देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, वहीं से ही आपका MSME, आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप, आपका इनोवेशन वहीं से ही क्रिएट होगा। तो सबसे पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है, और दूसरा जो इस पैनल डिस्कशन से निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको मार्केट को भी उतना ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है, और तीसरा फिर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि कैसे आप उसी मार्केट में कुछ नया कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ चल रही है, तो बीकानेर वाला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मिठाई तो पहले भी बिक रही थी, लेकिन कुछ नया करके दिखाया, मार्केट को टर्न अराउंड कर दिया। तो ये जो टर्न अराउंड करने की कैपेबिलिटी है ये हम सब में है दोस्तों, लेकिन बस इस पैनल डिस्कशन से आज ये निकल के आ रहा है कि वो एक शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। हमारे बीच गुरनंदन सिंह जी भी आ गए हैं, शार्क टैंक इंडिया में आए थे, फीचर हुए थे। तो ये भी वही फोकस करते हैं कि नोइंग थाई सेल्फ आप ब्रेन मैपिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आज हमारे पैनल डिस्कशन में बहुत कुछ सीखने को मिला। कितने लोग हाथ खड़ा करके ये बता सकते हैं कि आज आप कुछ सीख के जा रहे हैं इस पैनल डिस्कशन से? तो ये पैनल डिस्कशन के लिए हमारे पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Wonderful. So friends, on this note, I would like to say thank you to all our panelists for joining this wonderful panel discussion. It was meaningful, it was enlightening, it was full of knowledge. Until we meet next time, this is Author Sherry signing off from this panel discussion. Thank you.